ہے قیامت المسیح کی اہمیت, the importance of resurrection of Jesus Christ. تو ہم پڑھیں گے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 28واں باب پہلی آیت سے 6 آیت تک. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو سامنے اسکرین پہ دیکھیے. یہاں لکھا ہے, اور سبت کے پہلے دن پاؤں ہٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے گئی, اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا, کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی, اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتے نے عورتوں سے کہا, تم نہ ڈرو, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے, کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا. ہاللیلویا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. کہیے آمین. تو تھوڑا سا میں پس منظر آپ کو بتا دوں. جمعرات کے دن, ابھی 2-3 دن پہلے شام کے وقت یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح منائی, اور وہاں سے فسح کے بعد یعنی شاعربانی دینے کے بعد یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گیتسمنی باغ میں چلے گئے. جمعرات کی رات کا وقت ہو گیا تھا, اور جب گیتسمنی میں گئے وہاں یسوع مسیح خداوند سے اپنے باپ سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے, لیکن میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. اچھا, اب خداوند یسوع مسیح بیک وقت خدا بھی ہے, خدا بھی تھا اور انسان بھی. سنیے, کامل خدا اور کامل انسان. بحیثیت انسان اس نے سوچا کہ اگر ٹل جائے, لیکن خدا ہونے کی حیثیت سے اس نے کہا میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. تو پھر جمعرات کی رات گیتسمنی میں ہی, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یسوع کو گرفتار کر لیا گیا. اب سب سن رہے. پھر رات بھر جمعرات کی پوری رات مذہبی عدالتیں کھلی رہیں, رومی حکومت کی عدالتیں کھلی رہیں, اور یسوع مسیح کو گھسیٹتے کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی عدالت میں پیش کرتے رہے. اور پھر صبح ہو گئی گڈ فرائیڈے, پرسوں کا دن, اور گڈ فرائیڈے کو خداوند یسوع مسیح کو تقریباً دوپہر 12 بجے مصلوب کر دیا گیا, صلیب دے دی گئی. میں تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ نے کافی پیغام اس کے بارے میں سنے ہیں. اور یسوع مسیح کی لاش کو لے کر ایک ایسی قبر میں رکھا گیا جس میں کبھی کوئی دفن نہیں ہوا تھا, اور وہ ایک غار تھی. اور اس غار کے آگے یسوع مسیح کو وہاں اس کی لاش کو رکھنے کے بعد اس غار کے آگے ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا, اور روم کی حکومت نے وہاں ایک مہر لگا دی, تاکہ ان کے خیال میں کہ روم یہ جو مہر لگ گئی ہے, اب اس پتھر کو کوئی لڑکا نہیں سکتا. ایک بڑا پتھر, مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ اس پتھر کو لے کے آئے ہوں گے, میرا خیال ہے کہ 100 کے حساب سے لوگ ہوں گے. ایک بڑا پتھر, اس کو پتہ نہیں کیسے گھسیٹ کے وہ لے آئے اور انہوں نے قبر کے آگے رکھ دی. اور جمعے کا دن یسوع مسیح قبر میں تھا. لیکن ایک بات بتا دوں, یسوع کا بدن قبر میں تھا. رسولوں کے عقیدے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح ہوا, دفن ہوا اور عالم ارواح میں اتر گیا. یسوع مسیح عالم ارواح میں گیا, روح کے عالم میں, اور وہاں جا کے کہا
हूं, मैंने अपनी जान दे दी है, अपना लहू बहा दिया है, और मेरा बदन तो कब्र में है, लेकिन मैं यहाँ मुनादी करने के लिए आया हूं। और वो लोग जो ओल्ड टेस्टामेंट में थे, जो पुराने जमाने के लोग थे, जो कब्रों में थे, जो जिनकी रूहें आग में अरवा में थी, यीशु ने उनको जाके खुशखबरी दी, और बेशुमार लोगों ने यीशु मसीह को अपना निजात देंदा, यीशु मसीह को कफारा देने वाला कबूल कर लिया। बोले हालेलुया। ये कब्र में बदन है, लेकिन यीशु मसीह आग में अरवाह में है, रूहों के आलों में। और फिर अच्छा, ये वो कई लोग ये कहते हैं, जरा गौर से सुनिए, कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा जी 2000 साल हुए, यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह की मनाती हुई और अरबों के हिसाब से लोग मसीह पर ईमान ले आए। वो कहते हैं कि मसीह के मसलूब होने से पहले, मर कर जी उठने से पहले बेशुमार लोग मर चुके थे, उनका क्या बनेगा? बाद वाले तो कबूल कर ले, उनका क्या बनेगा? तो उनके लिए तो मैंने बताया, ये सवाल मेरे बाप में उतर गया और कहा सुन लो कि मैं वही हूं जिसके बारे में पेशगोइयां की गई थी। पुराने आदमी में कहा गया था कि एक आएगा, मैं आ गया हूं, मैंने कफारा दे दिया है, और बेशुमार लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। बोले हालेलुया। तो आपको बता रहा हूं कि आप उनकी फिक्र ना करें कि उनका क्या बनेगा, यीशु मसीह ने वहां मुनादी कर दी थी। ठीक है, ये आपको रसूलों के कीदे में बार बार पढ़ते हैं। फिर जुमे की रात गुजर गई, हफ्ते की रात गुजरी, और फिर इतवार की सुबह पाँव फटते वक्त, अलग सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हुआ? चंद औरतें कब्र पर आई, और आके जब आई तो उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता, पहले तो उन्होंने देखा एक भूचाल आया, जबरदस्त जलजला आया। और जब जबरदस्त जलजला आए तो आप जानते क्या होता है, एक मामूली सा जलजला आए तो लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। एक बड़ा भूचाल, देखिए बड़ा भूचाल, तो एक बड़ा भूचाल आया और एक फरिश्ते को देखा गया जो नूरानी सफेद पोशाक में था। और क्या हुआ? उसने उस पत्थर को जो कब्र के आगे रखा हुआ था लुढ़का दिया। पता नहीं कितने लोग उठा के लाए थे, उसने मेरे ख्याल एक उंगली से ही उस पत्थर को लुढ़का दिया। बोले हालेलुया। और यीशु मसीह बड़ी कुदरत के साथ जी उठा। बोले हालेलुया। जी उठा यीशु मसीह, और उसने बाद में ऐलान किया, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई? ऐ मौत तेरा डंक कहां गया? मौत फना का लुकमा हो गई, मौत की डेथ हो गई, मौत की मौत आ गई। और आज वही दिन हम मना रहे हैं। इतवार की सुबह यीशु मसीह जी उठा, तो फिर सब एक दूसरे को कहिए हैप्पी रिजरेक्शन। उर्दू में कह दें क़यामतुल मसीह मुबारक हो, कहिए ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और अगर मुश्किल है तो कहिए ईस्टर मुबारक हो। एक दूसरे को कहिए, आगे पीछे दाएं बाएं जी, कहिए हैप्पी ईस्टर। तो फिर पाँव फटते वक्त हफ्ते का पहला दिन, आप इंग्लिश में जब बच्चों को दिनों के नाम बताते हैं तो कभी मंडे से शुरू नहीं होते दिन, कहां से शुरू होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, और हर जगह पे यही सिखाया जाता है। तो संडे जो है हफ्ते का पहला दिन है, सैटरडे के बाद हफ्ते का पहला दिन। तो हफ्ते के पहले दिन इतवार के दिन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अजीब मंजर हुआ। जैसे मैंने जिक्र किया, बड़ा भूचाल, फरिश्ते ने पत्थर को लुढ़का दिया, और जो सिपाही थे एक तो वो डर गए भूचाल से, और दूसरा फरिश्ता, खुदा ने फरिश्ता भी बड़ा अजीब भेजा। अजीब रोशनी उसमें थी और बर्राक उसकी पोशाक थी, और वो फरिश्ते को देख के भी डर गए, और ज्यादा सहम ये भी गए कि वो पत्थर जिसको रोमियो ने जिसपे मोहर लगाई थी, वो मोहर भी टूट गई, और जिसको पता नहीं कितने लोग उठा के लाए थे, उस फरिश्ते ने उसको आराम से लुढ़का दिया। डर गए, नौकरी का भी खतरा पड़ गया कि तुमने मसीह को कैसे जाने दिया कब्र में से, डर गए। लेकिन फरिश्ते ने उन औरतों से कहा, तुम ना डरो, है ना, डरो दो। हेलो,
क्या कहा औरतों से? बोली जरा क्या कहा? तुम ना डरो, तुम तो मसीह को ढूंढने आई हो, तुम तो उस मसीह को के मुतलाशी हो जो मसलूब हुआ था, तुम ना डरो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कई लोग कहते जी मैंने डर लग रहा है, बच्चा त्रिविल जाता है, मैनू डर लग जाए, मेरा बच्चा डर जाता है। तुम ना डरो, क्योंकि यीशु जिंदा है, यीशु जी उठा है, वो कब्र में नहीं है और वो आपके साथ है। आप कभी किसी तरह के खौफ में मुब्तला ना हो। वो डरते हैं तो डरने दे, तुम ना डरो। बोले हालेलुया। अब अगर कभी डर लगे तो अपने डर को डरा दें। अगर कभी डर लगे तो क्या करें? हेलो बोलिए, अपने डर को डरा दें, भगा दें उनसे कि जिंदा यीशु, मौत में फाते, कब्र में फाते, बीमारी में फाते, रोमी हुकूमत में फाते, यहूदियों में फाते, वो यीशु मेरे साथ है जो जिंदा है, जिसकी उम्मीद बना रहे हैं, वो हमारे साथ है। तो डर को भगा दें यीशु के नाम से, यीशु आपके साथ है। अब फरिश्ते ने एक ऐलान और भी किया। एक तो कहा कि डरो मत, तुम ना डरो। एक और बात कही, क्या कहा? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? कब्रों में क्यों ढूंढती हो जिंदा को? वो तो जिंदा है, जिंदा कब्रों में नहीं रहते। और बहुत से लोग, आप नहीं, बहुत से लोग कब्रों में जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, खानकाहों में जाते हैं, ज़ियारतों में जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। कहा गया कब्रों में नहीं, जिंदा को यहाँ मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वहां तो मुर्दे हैं, और उनकी मुर्दों की कई मुर्दे ऐसे हैं जिनका तो नामो निशान भी नहीं है। और मुझे कई दफा बताया गया कि कुछ ऐसी कब्रें भी हैं जिनमें कोई दफन भी नहीं हुआ होगा, और लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं। यीशु जिंदा है, हालेलुया, और कब्र में नहीं है। उसने कहा आओ ये जगह देखो, आओ देखो, ये है वो जगह, यहाँ यीशु दफन हुआ था। कैसा खूबसूरत ऐलान किया है। आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु कब्र में नहीं है। बोले हालेलुया। एक और बात कही जिस पे मैं जोर देना चाहता हूँ। क्या कहा? वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। जरा तालियां बजा दीजिए। वो अपने कहने के मुताबिक, रिपीट कीजिए, वो अपने कहने के मुताबिक, वो अपने कहने के मुताबिक यीशु जो कहता है करके दिखाता है। वो जो उसने कहा वो सादिकुल कौल है, वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा है, और जो कुछ उसने कहा वो पूरा हुआ। जरा देखिए उसने कहा क्या था। मरकस 9:31, मरकस की इंजील 9 बाब 31 में आए, यानी क्या है? इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता था और उनसे कहता था इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे। पहले क्या दिया था यीशु ने? पहले क्या दिया था? उसे कत्ल करेंगे, और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। हालेलुया। यीशु ने खुद पहले से बता दिया था। यीशु जो कहता है करके दिखाता है। यीशु ने कहा मैं जी उठूंगा, वो जिंदा हो गया। और सुनिए, जब यीशु जी उठा, मत्ती की इंजील 26वां बाब 32वीं आयत, मत्ती 26:32 लिखा है, मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यीशु ने पहले से बता दिया था मुझे कत्ल किया जाएगा, मैं जी उठूंगा और मैं तुमसे पहले गलील को चला जाऊंगा। यरूशलेम में वाकया हुआ है, तुमसे पहले गलील को चले जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। जो यीशु कहता है वो करता है। यूहन्ना की इंजील 2 बाब की 22वीं आयत पढ़ते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शागिर्दों को अब याद आया, हाँ यीशु ने ये बातें की थी। क्या लिखा है? बस जब वो मुर्दों में से जी उठा, बोलिए, बस जब वो, हाँ जी, बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। बोले हालेलुया। उन्होंने यकीन किया, इसने सही कहा था। भाइयों,
बहनों बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने और क्या क्या कहा है? मांगो तो तुमको तो यकीन करेंगे देगा। यीशु ने और क्या कहा है? मेरे नाम से मांगो, किसी और नाम से नहीं, मेरे नाम से मांगो तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और क्या कहा? दुनिया का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। और क्या कहा? मैं फिर आऊंगा। वो जो कहता है करके दिखाता है। जब उसने कहा कि मैं जी उठूंगा, जी उठा। और जब वो कहता है मैं वापस आऊंगा, तो ईमान लाइए कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया! यीशु अपने वादों में सच्चा है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड बोलिए, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, कहिए प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। अब जरा हम देखते हैं जो पुराना अहद है मत्ती से पहले, पुराना अहद नामा मत्ती से पहले, उसमें बहुत सी प्रोफेसीज हैं कि यीशु मसीह मरेगा, दफन होगा और जी उठेगा। हजारों साल पहले लिखवा दिया था क्या? यीशु मरेगा, आगे दफन होगा और जी उठेगा। सिर्फ 2 आयतें मैंने चुनी है पुराने नामे से, ज्यादा नहीं क्योंकि वक्त कम है। तो मुझे बहुत प्यारी आयत लगी यशायाह की किताब 25वां बाब और उसकी 8वीं आयत। यशायाह 25:8। जी सब ऊंची आवाज में पढ़ते। और वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। ये यशायाह ने सैकड़ों साल पहले ये प्रोफेसी कर दी थी। क्या कर दी थी? कि वो मौत को हमेशा के लिए forever नाबूद कर देगा। ये नाबूद लफ्ज जो है ये फारसी का लफ्ज है। बूद, जरा नाम को हटा दें। बूद का मतलब है था या थी, उसके साथ ना लगा दें, नाबूद नहीं थी। इसका मतलब ऐसी मौत की हालत कर देगा जैसे कभी मौत थी ही नहीं, जैसे उसका वजूद ही नहीं था। नाबूद का मतलब है जो थी ही नहीं, जो ऐसा लगेगा कभी मौत का नामो निशान ही नहीं था। यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर साबित कर दिया कि वो पेशगोई जो यशायाह ने सैकड़ों साल पूरी की थी वो मेरी बाबत थी, और उसने मौत का सत्यानाश कर दिया। डेथ किलर यीशु मसीह, मौत का उसने खात्मा कर दिया। और एक और हवाला पढ़ूंगा अय्यूब की किताब। मैं पुराने नामे से सिर्फ 2 आयतें चुनी है। ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नामा, अय्यूब की किताब 19वां बाब 25वीं आयत। लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। पुराने अहदनामे में मखलसी देने वाले का जिक्र कहां से आ गया? मखलसी देने वाला तो यीशु मसीह नए अहद में है, तो ये पुराने अहदनामे में कहां से आ गया? अय्यूब पर खुदावंद ने जाहिर कर दिया, और वो लिखता है, मैं जानता हूं, रुत उसने उससे लिखवाया, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। हालेलुया! पुराना अहदनामा यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि वो जी उठेगा। कहते लोग, कहते बाइबल जो है ना, ये जो लोग ईमान नहीं लाते इस पे, कहते बदल गई। उन्हें ये पता है बाइबल के वादे जो पुराने नामे में थे वो तो पूरे हुए, वो पूरे हुए। यीशु मसीह जी उठा और बेशुमार वादे पूरे हो चुके हैं। वो यीशु जो कुछ कहता है वो करके दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपके सामने चंद सबूत रखूंगा। अगर कोई कहे कि फलां आदमी मर गया था और वो जिंदा हुआ, तो कोई सबूत तो होना चाहिए। सबूत बाइबल में बहुत से हैं, लेकिन मैं बहुत से नहीं, चंद एक सबूत दूंगा। पहला सबूत, आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद यीशु मसीह को दफन किया गया। पहला सबूत, खाली कब्र, एम्प्टी टूम। मत्ती की इंजील 28वां बाब 6वीं आयत, क्या लिखा है? वो यहां नहीं है क्योंकि आपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। खाली कब्र चीख चीख के कह रही है, यहां कोई दफन हुआ था जो जिंदा हो गया है, और मैं खाली पड़ी हूं। या कोई दफन हुआ था,
زندہ ہو چکا ہے یہاں نہیں ہے. خالی قبر ایک بہترین گواہ ہے. اور آپ کو بتاؤں دنیا میں لاکھوں لوگ, شاید کروڑوں, لاکھوں لوگ اسرائیل میں ایک ایسی جگہ زیارت کرنے جاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے. بڑا کس کی؟ خالی قبر کو دیکھنے جاتے ہیں. خالی قبر کو دیکھنے جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح یسوع یہاں دفن ہوا تھا. سینکڑوں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ اسرائیل میں جا کے خالی قبر کو دیکھتے ہیں اور شکر کرتے ہیں یسوع تو زندہ ہے, تیری قبر خالی ہے. یسوع کی قبر خالی ہے. ہاللویا. یسوع کی قبر خالی ہے ساری دنیا کے لوگوں میں سے. باقی تو قبروں میں پڑے ہیں, باقی معبود, اور ان کے تو نام نشان بھی مٹ گیا ہوگا. کہتے ہیں بال جو ہے نا وہ دیر تک رہتے ہیں, ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. میرا خیال ان کے بال بھی جاتے رہے, نام و نشان نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح کی قبر چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے یہاں کوئی دفن ہوا تھا. ایک گواہ اور گواہ چاہیے. ہلو, کوئی اور گواہ بتاؤں جو بتائے گا کہ یسوع جیوت ہے. جی سنیے, بتا دوں. اوکے, پالوس رسول جو یسوع کے 12 شاگردوں میں سے نہیں تھا, یہ تو بعد میں شاگرد بنا ہے. یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد جب یسوع مسیح اس کو دمشق کے راستے میں ملا اور پالوس جس کا نام پہلے ساؤل تھا مسیح پر ایمان لے آیا, اس کو تو یسوع مسیح نے مل کر ساری باتیں خود سے بتائیں. اس نے کہا میں مر گیا تھا اور میں جی اٹھا ہوں. آئیے پڑھتے ہیں پترس, یہ پالوس کی گواہی, پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 اور 4 آیت. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 3 اور 4 آیت. پڑھنے سے پہلے ذرا یسوع مسیح کے جلال کے لیے تالیاں نہیں بجائیں گے؟ پوچھ لو اوپر آ کر کے, اوپر آ کر کے ہاللویا, زور سے کہیے ہاللویا. تو دوسری گواہی پالوس کی, لکھتا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. یسوع مسیح تو مر کے آسمان پہ چلا گیا, بعد میں پالوس مسیح پر ایمان لایا. کہتے ہیں میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو مجھے پہنچی تھی, اور وہ یہ تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. بولے ہاللویا. یسوع زندہ ہے, اسی لیے تو ایسٹر منا رہے ہیں, اس لیے تو ہمیں خوشی ہے. ایک اور گواہ بتاؤں گا, ثبوت ہے تو بہت سے, لیکن آج کے لیے ایک ثبوت اور. پتا کون سا؟ وہ آپ خود ہی ہیں. آپ ثبوت ہے کہ میں ثبوت ہوں کہ یسوع زندہ ہوا ہے. بولیے بولیے, میں ثبوت ہوں اس بات کا کہ یسوع مسیح زندہ ہو چکا ہے. اربوں لوگ, لاکھوں کروڑوں نہیں, بلینز اور شاید اس سے بھی آگے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد مسیح پر ایمان لائے. 2000 سال سے لوگ ایمان لا رہے ہیں, ان کی تعداد اربوں میں چلی گئی ہے. اور 2000 سال سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا یسوع عالم ارواح میں اترا, وہاں جا کے منادی کی اور کہا میں مر گیا تھا, میں یہاں آیا ہوں, اب میں جی اٹھوں گا اور میں نے موت کا خاتمہ کر دینا ہے. اور وہ بھی مسیح پر ایمان لے آئے. تو اربوں لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے. آج دنیا کے مسیح جو اس وقت اس دنیا میں ہے, کیوں ہے؟ اس لیے وہ مسیحی ہیں کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے. ہاللویا. بولے سب بولے ہاللویا. تو پہلی بار اس بات کا اعلان ہوا کہ یسوع جی اٹھا ہے. آپ کو یاد ہے کب جب یسوع جی اٹھا تو پہلی بار شاگردوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا, اور اعلان کیا ہوا؟ یسوع زندہ ہے. اور کب ہوا؟ ایمان کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 36ویں آیت اور ساتھ ہی 41ویں. تو 36 آیت میں لکھا ہے پترس نے منادی کی پینتیکوس کے دن اور کہا بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مسلوب کیا تھا
खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। क्या दलेरी पतरस में? वही है जिसने 3 बार इनकार किया। अभी ज्यादा देर तो नहीं हुई, यीशु को आसमान पे गए, 50 दिन हुए हैं, तकरीबन 2 बल्कि 50 दिन हुए हैं, और वो क्या है, तुमने ऐ यहूदियों तुमने उसे मसलूब किया, लेकिन वो खुदावंद भी है, मसीह भी है, वो जी उठा है, वो आसमान पे है, वो सब करता है, वो जिंदा बादशाह है। और सुने, जब पतरस ने मुनादी की, 41वीं आयत साथ ही है उसी तरफ लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, यहूदी तो वहीं इसके ढेर ज्यादा था, उनकी आंखों के सामने यीशु मसलूब हुआ था। जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। पहले ही वहां से जब पतरस ने कहा यीशु जी उठा है, 3000 लोग मसीह के पास आ गए, बोले हालेलुया, ईमान ले कि हाँ वो जी उठा है। वैसे भी उन्हें मालूम था, वैसे तो खामोश थे रोमियों के डर से, यहूदियों के डर से, लेकिन पतरस की दिलेरी, रूह कुदस की आवाज, और वो चिल्ला उठे, ऐ भाइयों हमें बताओ हम क्या करें। उसने कहा यीशु को कबूल करो जो जी उठा है। बोले हालेलुया। अब मैं इसकी अहमियत बयान करूंगा 1-2 जुमलों में। क़यामतुल मसीह की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ रेज़रेक्शन ऑफ क्राइस्ट। तो पहली अहमियत, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। बोलिए जी, सब बोले यीशु, बोले यीशु का जी उठना हमारे ईमान की बुनियाद है। अगर किसी का ये ईमान नहीं है कि यीशु जी उठा, और वो सिर्फ गुड फ्राइडे में ईमान लाता है कि यीशु हुआ, अगर कोई सिर्फ ये ईमान लाता है कि यीशु ने मौजज़े किए, अगर कोई सिर्फ यही मान लाता है कि उसने मौजज़े भी किए और वो मरा भी और दफन भी हुआ, और वो ये नहीं मान लाता कि वो जी उठा, तो वो मसीही नहीं है, वो क्रिश्चियन ही नहीं है। तो ये हमारे ईमान की बुनियाद है। पढ़िए जरा पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 17वीं आयत। मैं खत्म करने जा रहा हूं जल्दी से, आपको 11 बजे से पहले हम इबादत को खत्म करके देंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 17वीं आयत। मैं चाहता हूं कि आप ये पैगाम जो सुन रहे हैं अपने औरों को सुनाएं। लिखा है, पौलुस कहता है, और अगर मसीह नहीं जी उठा, फर्ज करें, पौलुस कह रहा है, फर्ज करें कि वो नहीं जी उठा, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, ईमान ही बेफायदा है। मत करिए अपने आप को क्रिश्चियन अगर मसीह नहीं जी उठा। जी उठा है तो यही तो हमारे ईमान की बुनियाद है। तुम अब अपने गुनाह, और वो कहते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो अभी भी आप गुनहगार हैं, अभी भी गुनाह में गिरफ्तार हैं। हम अपने गुड न्यूज चर्च में रसूलों का अकीदा नहीं पढ़ते, लेकिन ये नहीं कि हम मानते नहीं है। आइए जरा रसूलों का अकीदा पढ़ें। नेक्स्ट स्लाइड। आपको ज़बानी याद होगा क्या लिखा है, क्या लिखा है, सब इकट्ठे बोले, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये अकीदा जो है, ये कहता है कि यीशु मसीह जी उठा है। और आपको क्या सबूत चाहिए? यीशु जी उठा है, जिंदा है। और तकरीबन मैं एंड में पहुंच गया हूं। अगर यीशु ना जी उठता, फर्ज करें, तो आज का जो आप बपतिस्मा देते हैं, ये बपतिस्मा बेफायदा होता है। एक मिनट जरा आप आ जाइए स्टेज पे। अब जरा गौर से देखिए, अगर यीशु जी ना उठता तो बपतिस्मा का कोई मतलब ना होता। हम बपतिस्मे में क्या करते हैं, ये देखिए, हम किसी शख्स को जब बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने आप, हम कहते हैं, ए भाई मैं तुझे बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा देता हूं।
हम लेटे नहीं रहने देते पानी में, पास हम निकाल देते हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर तक रहने दें। तो बाइबल में लिखा है जब हम बपतिस्मा देते हैं, लेते हैं, मसीह की मौत में शामिल होते हैं, मसीह की मौत में, लेकिन जब ऊपर लेके आते हैं तो उसके जी उठने में शामिल होते हैं। बोलो हालेलुया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो बपतिस्मा किस चीज का? बपतिस्मा ये साबित करता है, थैंक यू, कि यीशु मसीह हुआ, दफन हुआ और उसके बाद जी उठा। ये बपतिस्मा है, वरना बपतिस्मे को कोई फायदा ना होता। और ये जो बच्चों का बपतिस्मा है, इसकी तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो बाइबल का है ही नहीं। जो बपतिस्मा बाइबल का है उसकी बात कर रहा हूं। मैं आयत पढ़ के सुना देता हूं जी। क्या बात है? मेरा ख्याल है कि सबूत के साथ बात करनी चाहिए। मैं नहीं कहा पंजाबी च कहते हैं झूठे दे कहता जी, नहीं, मैं कहूंगा मैं सबूत पेश करना चाहता हूं। कुल से दूसरा बात 12वीं है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, जैसे अभी आपने देखा मोशन को, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से चलाया उसके साथ जी उठे। पता चल गया जी क्या मैंने कहा था? बपतिस्मे में हम क्या हुए? पहले बोलिए, पहले हम, अभी तो टैबलो दिखाया मैंने, अभी आयत भी पढ़ी है। बपतिस्मा में हम मसीह के साथ पहले दफन हुए और फिर जी उठे। तो हमारा बपतिस्मा ये जाहिर करता है कि मसीह हुआ, दफन हुआ और जी उठा। बोले हालेलुया। और एक और बात भी जाहिर करता है, मैं गुनाह वालों मार गया, रास्तबाजी वालों जी उठा। और एक और बात भी जाहिर करता है कि मैं अगर मर भी गया तो जब यीशु आया जी उठूंगा। इतनी बातें हैं बपतिस्मे में, और ये सारी बातें यीशु के जी उठने की वजह से है। तो यीशु के जी उठने से खुदा का मंसूबा पूरा हो गया। खुदा का मंसूबा नजात, सल्वेशन प्लान जो है वो पूरा हुआ। पैदाइश की किताब में कहा गया था, खुदा ने कहा सांप से कि एक आएगा औरत की नस्ल से, वो तेरे सर को कुचलेगा। यीशु आया, शैतान के सर को उसने उस तरह से नहीं कुचला, वैसे तो वो आजमाइश पे खादम आता रहा, लेकिन कैसे कुचला? सलीब पर चढ़कर उसने फतेह का शादिया लगा दिया, शैतान के सर को उसने कुचल के रख दिया। आइए आयत पढ़ते हैं। आयत बड़ी खूबसूरत है, बल्कि आयात है, मेरे दिल चाहता मैं सारी पढ़ूं। कुल से दूसरा बाब 13वीं से 15वीं। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामफ्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। गुनाह के बाद से मुर्दा थे, जिंदा किया। और आगे, और हुक्मों की दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बड़ा तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेह का शादिया बजाया। हालेलुया। तो अगर वो ना जी उठता, आखिरी बात आज के लिए आखिरी, आप सुन रहे? अगर जी ना उठता तो कुछ और भी ना होता। भला आप सोचें, थोड़ी देर सोचें, अगर जी ना उठता तो कुछ और भी ना होता। हाँ ठीक है, निजात न मिलती, कुछ और भी है। हम भी ना जीवते, हाँ जी ये भी ठीक है। कोई और बात? ईस्टर ना होता। अच्छा, आपको कुछ क्या पीछे क्या थे? अच्छा मैं आपको बता जी, डेविड साहब, हाँ मुनादी भी बेफायदा होती, वेरी गुड। लेकिन मैं कुछ, ये सारी बातें ठीक है आपकी, लेकिन मैं एक और बात बताने लगा हूं। अगर मसीह ना जी उठता तो होली स्पिरिट भी ना आता, रूह कुदस भी ना आता, क्योंकि यीशु ने कहा मैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? मर के जी उठ के जाऊंगा, तो मैं जाकर अब वो रूह कुदस भेजूंगा जो तुम्हें यतीम नहीं छोड़ेगा, और रूह कुदस तुम्हारे साथ रहेगा। अगर यीशु ना मर के जी ना उठता तो होली स्पिरिट भी ना आता, और अगर होली स्पिरिट ना आता आज लोग क्रिश्चियन ही ना होते, क्योंकि रूह कुदस है जो लोगों को मसीही बनाता है। बहन भाइयों दोस्तों सुनिए,
दो पैगाम आखिर में देना चाहता हूं। अगर आप निजात याफ्ता हैं तो याद रखें जिंदा यीशु आपके साथ है, और अगर वो आपके लिए आपके साथ है तो आप हमेशा याद रखें आप गुनाह से डरते रहेंगे, यीशु के लहू को पुकारते रहेंगे। और अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया, आज ही मान लाएं कि वो आपके लिए हुआ, आपके लिए दफन हुआ, आपके लिए जी उठा। अपने यीशु के जी उठने के वसीला से बपतिस्मे की बुनियादी होती है, बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाए। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत मिले। कहिए आमीन।